we start in 2014. This is our first school called International School Noida Extension. This is our first branch. कभी भी ऐसी जब हमारे पास प्रॉब्लम आए, ऐसा कोई क्रूशल टाइम आ जाए, टफ टाइम आ जाए, तो हम इन बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दें कि वो एज ए सोल्जर काम कर सकें, एज ए वॉलंटियर काम कर सकें. So basically आप सोसाइटी वर्क नहीं, आप गॉड्स वर्क कर रहे हो. When I came to know about my disease, Hmm. my cancer, so I spoke to my doctors कि डॉक्टर्स आप मुझे बताइए कि ये मुझे जीना कैसे है. Then I can remember कि मुझे थोड़ा सा पता चल गया था कि something is going wrong in my life. लोग कहते हैं सबके पास एक कहानी होती है, पर सुनता कौन है? Well, I do, and if you're here, maybe you do too. Welcome to another episode of Charcha with Avisha, a trailblazer at the intersection of real estate and education. She is one of the few women leading entrepreneurs redefining leadership across the two most dynamic sectors of our country, real estate and education. We welcome us today with Miss Manju Gaur. We welcome you, ma'am. Thank you so much for agreeing with us to shoot this episode. We know how busy you have been with all of your schedule. Thank you so much. Thank you, Tavisha. Thank you so much. Thank you, ma'am. So before we start with the segments, could you please give a small introduction about you? That what are you working on? What is the field that you have currently been working or have been past may worked? I'm Manju Gaur, Director of God Group Schools and Godsons India Limited. And we have 3 schools, 3 branches, more than 5,000 plus students we have. And we are doing a lot of work in school education field. And as you know, we are coming from the real estate company. So it is almost 31 years old company, real estate. And suddenly in 2014, Mr. Manoj, my husband, has a plan to make a school for the God City, because God City is an integrated township, 250 acres township, and in the layout, in the planning, there should be a school in the planning. And Mr. God ne kaha ki we have to make a school, and should be a walk to a school concept like in foreign. So that's why it's a very new thing for us, because we are not person from the education field. This is such a new field for us, and lots of brainstorming कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए. It's not easy for us because we have no idea कि how to open a school and what kind of school we have. Yeah. So we think about the franchisee also, the DPS, and so many all other schools also. So after a very long charcha and a very long brainstorming, then Mr. God took a decision कि no, I think we have succeed in real estate, so why not in education? So we have to try. So then we start in 2014. This is our first school called International School Noida Extension. This is our first branch, and totally international standard school, as you can see, and all the facilities which we are providing here for the students. And it's a walk to school like abroad. The students can save their time, save their money, save their energy. They very timely go back to their homes and come back early for their extra classes, for the sports and other things. So this is the main concept of the walk to school. And यही इसको दिमाग में रख के बनाया गया कि लाइक इस तरीके से एक स्कूल हो जो कि एक वॉक टू कॉन्सेप्ट के साथ हो. एंड हम किस तरीके से सबकी इसमें बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि टीचर्स आर आल्सो कमिंग फ्रॉम गॉड सिटी. सो दिस इज वेरी गुड. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स, दे आर वर्किंग हियर, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं. एंड कुछ टीचर तो सामने 16th एवेन्यू में है, सो दे आर कमिंग हार्डली 5 minutes. एंड बच्चे इधर हैं तो दे आर वेरी securing their times and money, everything. And बच्चों को ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, and बच्चे safe and secure. This is the concept of the God City School. This is school. And after that we started school in God Yamuna City, and it is also school in the township. And after that we start school in Siddharth Vihar. This is also in the housing You've society. built your own community. Yes, this is our community actually. And now I can say more than 500 plus teachers we have. Oh. Yes, and other staff we can say it's almost
6 to 700 we have. We love how you all remember the numbers of the staff and the teachers as I well. think it should be. It good ना, you can feel good Yes. यार, you are मतलब like आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने लोगों की फोर्स के साथ आपको काम करना है, True. डेली हैव टू डील विद ऑल देम, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका वेलफेयर कैसे करना है, उनके साथ किस तरीके से काम करना है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई हैव टू नो ऑल द नंबर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय स्कूल, व्हाट इज द स्टेटस एंड एवरीथिंग. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. That also makes you a very good leader कि यस. आपको अपने ग्राउंड रूट्स के बारे में भी पता है. हाँ, इट्स, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू नो ऑल द नंबर्स, कि लाइक कितना स्टाफ है, क्या काम कर रहा है, कितना है, बिकॉज numbers plays such a big role Yeah. in any industry, I think so. And I think all the leaders have some idea. They can invest also. They also invest in that. And they have idea कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है. And but team का होना इसलिए जरूरी है, because without team हम कुछ नहीं कर Agree. सकते. तो we need a team like your Yeah. team. So you Very have, grateful to them. so you also have a good team here. So टीम का होना बहुत जरूरी है. अगर हम सक्सेस चाहते हैं तो हम तो एक आइडिया के साथ, लीडर तो वही है जो अपने आइडिया के साथ आए Yeah. एंड उसका एक विजन हो एंड इन्वेस्ट करने के लिए मनी हो, देन यू कैन डू एनीथिंग. एंड उसके बाद आपको अपनी टीम चाहिए जिसके साथ यू कैन डू योर वर्क, एंड जो आपने ड्रीम देखा है उसको सक्सेसफुली आप उसे जी सको. The way you talk about your school, about this institution, we can clearly see आपका proper love, dedication, hard work है इन सब चीजों के पीछे. Yeah, congratulations first of all for all थैंक यू this सो मच. education. प्रॉपरली बिल्कुल 100% डेडिकेशन है. एंड आई थिंक डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ काम करते हैं तभी हम कुछ बन पाते हैं और कुछ निकल पाता है. Yeah. अदरवाइज हम उसको उस तरीके से नहीं देख पाएंगे जैसे हम उसे देखना चाहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही हमेशा कहती हूँ कि हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, तो हमें अपना 100% देना चाहिए. Yeah. अगर हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा चीज निकल के आए, सो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उसको 100% दे सकूं. एक जो हमारा स्कूल है, जो मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे निकले जो हमारे देश का नाम रोशन कर सके. एक अच्छे, सबसे पहले तो मैं मानती हूँ कि अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के निकले, अच्छे नागरिक बन के निकले, एंड देश का नाम रोशन करे. कुछ ब्यूरोक्रेट्स बने, कुछ डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, IITians बने. मैं तो यही चाहूंगी कि इस तरीके के बच्चे यहाँ से निकले. और बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे स्कूल में. दे आर डूइंग सो वेल. अभी बहुत मुझे मौका मिला नरेंद्र मोदी जी से मिलवाने का, स्मृति ईरानी जी से मिलवाने का, रेखा गुप्ता द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. तो ऐसे और बहुत से, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी, ऐसे बहुत सारे लोगों से बच्चे मिले. बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है. अगर वो इस तरीके के लोगों से मिलते हैं तो दे कैन लाइक फील लाइक कि हम कुछ लोगों से मिल सकते हैं, कि कॉन्फिडेंस अलग आता है. सो ये तो मैं जो काम करती हूँ स्कूल के लिए, हम जो मैं काम कर रही हूँ वो मेरा काम है. एंड उसके अलावा लाइक जो स्कूल था, लाइक 2014 में हमने स्टार्ट किया, फिर अगेन इन 2018 मैं कहीं पे गई, आई थिंक बुलंदशहर, आई थिंक आई इनटू बुलंदशहर. सो आई सॉ स्कूल की, वहां पे मैंने एक स्कूल देखा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल था. इट वाज अ ह्यूज बिल्डिंग, शिव नाटस का स्कूल था. एंड आई रियली इम्प्रेस्ड कि यार लोग बहुत काम कर रहे हैं समाज के लिए. एंड आई ऑल्सो थिंक लाइक I have to also do this, all these things, because मेरे पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, and I can do, मैं कर सकती हूँ, and back to the society I have to go. So then I discuss with my family and all कि मुझे ये काम करना है underprivileged girls के लिए. That was a quad school, but I don't want any quad school. I want to do work for the girls. बिकॉज ऑफ मोदी जी का विजन भी है कि जब एक बेटी पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, तो एक समाज बढ़ता है, और एक फिर हमारा देश आगे बढ़ता है और देश भी बढ़ता है. तो मोदी जी का विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कूल खोला जाए. एंड वी स्टार्टेड इन 2018 and it was really a wonderful school for me and very close to my heart. It's a really a wonderful project and I got lots of praises from everywhere. And from the even the Pradhan Mantri ji said ki you are doing such a good work. Wow. This is really a honor for me and privilege for me कि जब मोदी जी ऐसी बात करते हैं. So now I think more than 2000 plus students, हम girls जो हैं वो यहाँ से पढ़ के जा चुकी हैं. And they are getting free education, CBSE affiliated till 12th. Oh, lovely. Yes. So really it's a very good thing. And मुझे कभी कभी लगता है कि लाइक जो मैंने काम किया उससे मैंने एक, इट्स सच अ गेम चेंजर
इन दिस सोसाइटी। जब मैं कई बार इन बच्चियों से मिलती हूँ कि मैं इनसे पूछती हूँ कि व्हाट डू यू फील, तुम्हें कैसा लगता है कि तुम्हें एक स्कूल मिला जिसमें कभी तुम यू नेवर ड्रीम्ड अबाउट इट कि लाइक तुम यहाँ पहुंच भी पाओगे। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, तो दे सेड कि चेंज तो मैम ये है कि सबसे पहले अच्छा लगता है कि हम जब मम्मी और पापा को कुछ पढ़ना नहीं आता और हम पढ़ के बता या देते हैं, तो दैट्स सच अ वंडरफुल थिंग कि लाइक जो मुझे लगता है कि मैंने उस साक्षरता के अभियान को, जो लिटरेसी जो हमारे देश में वो जिसका एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, जो अभी हमें बहुत आगे तक इसे बढ़ाना है। अगर हम गांव में जाएंगे, दूर दूर देखेंगे, गांव के शहरों में जो सरकारी स्कूल हैं वहां पे अभी बहुत काम करने के लिए बाकी है, यस वहां पे अभी काम नहीं हो रहा है। तो मुझे जब लगता है कि मैं इन बच्चियों को स्कूल में लाके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इन्हें बिठा के और वही सब फैसिलिटीज दे रही हूँ जो एक नॉर्मल बच्चा जो मुझे यहाँ पे 11,000 रुपीज या 12,000 रुपीज की फीस देता है, उस बच्चियों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, और वो अपना भविष्य को संवार रही है इस तरीके से। और जब वो कहती हैं कि हम अपने, मुझे कुछ बच्चियां बताती हैं कि बहुत अच्छा लगता है मैडम जब मेरे भाई को पढ़ना नहीं आता और मुझे पढ़ना आता है। सो लाइक उनको जो एक फीलिंग है कि लाइक हम उसे बताते हैं कि तू इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा, आई कैन डू दैट, मैं बताती हूँ तुझे। एंड वो कुछ बच्चियों ने मुझे बताया कि अपने वो वहां पे जो आसपास के घर हैं अपनी कॉलोनी में कुछ बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं। उन्हें लगा कि जब कुछ हमें मिला है तो व्हाई अब नॉट वी आगे हैव के टू स्प्रेड इट। एंड मैं अगर इसको ज्ञान को, क्योंकि मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं है सोसाइटी को, सो व्हाई नॉट दिस, तो वो या बैक टू द सोसाइटी वो भी जा रहे हैं। इट इज सच एग्जाम्पल कि लाइक उसने यस वो सोचा कि मैं क्यों नहीं ट्यूशन पढ़ाती इन बच्चों को, एंड इस साक्षरता के अभियान को और आगे बढ़ाया जाए गॉड इंटरनेशनल स्कूल के। तो ये बच्चे भी इस पे काम कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क फॉर द एनसीसी ऑल्सो। एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि ज्यादातर गर्ल्स जो है हमारे स्कूल में एनसीसी को ज्वाइन किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनसीसी? नेशनल क्रेडिट कोर्स ओके शुरू से ही हुआ करती थी, अब जाके एनसीसी जो है वो खत्म हुई है काफी स्कूल्स में। ओके लेकिन हमने ये जब स्कूल स्टार्ट किया, ये हमारी शुरू से प्लानिंग थी कि हम एनसीसी को लाएंगे। ओके लेकिन अब एनईपी एंड सीबीएसई ने इसे मैंडेटरी करते जा रहे हैं, यू हैव टू डू दिस बिकॉज एनसीसी में हर बच्चा एक सोल्जर है। जैसे कि बाहर के देशों में होता है, जब भी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो हर बच्चा जो है वो एक सैनिक के रूप में काम कर सकता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग जैसे इसराइल है या अदर कंट्रीज है, यूरोप कंट्रीज में आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है स्कूल स्टूडेंट्स को। तो एनसीसी में यही काम होता है, स्काउट्स एंड गाइड में यही काम होता है कि हर बच्चे को देश का एक सैनिक बनाया जाए। कभी भी ऐसी जब हमारे पास प्रॉब्लम आए, ऐसा कोई क्रूशल टाइम आ जाए, टफ टाइम आ जाए, तो हम इन बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दे कि वो एज ए सोल्जर काम कर सके, एज ए वॉलंटियर काम कर सके। तो ये एनसीसी में हमने काम किया और इसमें हमने बहुत काम कर रहे हैं एंड वेरी मतलब लाइक बहुत ज्यादा गर्ल्स इसमें एनसीसी में है। एंड लाइक मैं बताऊं कि मुझे सबसे बड़ी अच्छी खुशी तब होती है जब मैं ये बताती हूँ कि मेरी दो गर्ल्स जो हैं, टू गर्ल्स उन्होंने एनडीए में डायरेक्ट एंट्री मिली। दैट इज वाओ सच अ वंडरफुल थिंग। मतलब द हार्ड वर्क वी कैन सी कि उन्होंने कैसे उस तरह का काम किया और किस तरीके से फोकस्ड होकर डेडिकेशन के साथ किया कि दे हैव गेट चांस इन एनडीए या आल्सो। सो दिस इज सच अ बिग थिंग। एंड if I can speak about my Gurukulam also, I am doing Gurukulam as you see on that day. So गुरुकुलम स्टूडेंट्स वी हैव 40 स्टूडेंट्स। सो हमारा हमने गॉड सिटी में ऑलमोस्ट 2 टेम्पल्स हमने बनाए, लेकिन ऑलमोस्ट अभी तक देखा जाए तो वी हैव बिल्ट 10 टेम्पल्स। वाओ सो हमने टेम्पल बनाया तो वहाँ के जो गुरु जी वगैरह थे उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप बहुत टेम्पल्स बनाती हैं, तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे गुरुकुल ओपन करें। सो मैंने कहा कि लाइक उससे क्या होगा, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि लाइक क्यों। तो दे सेड कि मैडम एक तो यहाँ पे जो मंत्रों का उच्चारण होगा आपकी गॉड सिटी में, और जो गुरुकुल की जो एक सभ्यता है जो खत्म होती जा रही है, यस उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है कि हम गुरुकुल, क्योंकि हम कर सकते हैं। और जो आपका विजन है, हमने जब गुरुकुल स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि पंडित जी जब हम गुरुकुल स्टार्ट करेंगे तो मुझे वो सब क्या बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, मतलब दे व्हाट दे विल बिकम इन देयर फ्यूचर। सो दे सेड कि नहीं आप ऐसा मत सोचिए कि वो सब पंडित ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत स्कोप है, बहुत कुछ काम हो रहा है। ये बच्चे भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सब कुछ बनते हैं। आप इसके प्रोफेसर्स बनते हैं, ज्योतिषाचार्य बनते हैं, एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम करते हैं। नासा में अभी 2 स्टूडेंट गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप उसमें अगर आप विजन ऐसा रखते हैं कि उसमें आप बच्चों को फ्यूजन लाइक ट्रेडिशनल
एंड द And मॉडर्न, modern. बोथ द स्टडीज इफ यू आर गिविंग देम टू देम, Hmm. तो एक बहुत अच्छा निकल के आता है उसमें बच्चा। एंड क्योंकि उसको अपना जो वेदों की पढ़ाई है, जो 4 वेद है, वो उसकी भी पढ़ाई करता है, Hmm. जिसमें अभी हम देखें कि हमारा जितना भी यूनिवर्स है, वो उसका ओरिजिन, जितनी भी चीजें हम देखें यूनिवर्स में, एनीथिंग, लाइक हम तुम क्या, मतलब म्यूजिक है, ये फर्नीचर, एवरीथिंग जो है वो वेदों से ही निकला। तो जब कुछ सब कुछ वेदों से निकला, Hmm. लेकिन हमारे बच्चों तक या हम तक भी वो ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा, Yeah. क्योंकि जब लॉर्ड मैकॉले जब आए इंडिया में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग। तो उन्होंने सोचा इंडिया को हमें कैप्चर करना है, इंडिया पे हमें राज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या किया जाए। सो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वी हैव टू स्पॉइल द, वी हैव टू डिस्ट्रॉय दिस एजुकेशन सिस्टम। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तब हम यहाँ पे रुक पाएंगे और यहाँ पे राज कर पाएंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पे आके गुरुकुल को खत्म किया, Hmm. गुरुकुल सिस्टम को खत्म किया। एंड बहुत सारे गुरुकुल जो थे खत्म किए गए। एंड उसके बाद तो बहुत कुछ, एज एवरीबडी इज नोज कि अंग्रेजों ने क्या किया, एंड वो धीरे धीरे वो चीजें खत्म होती चली गई। Yeah. लेकिन अब दोबारा से गवर्नमेंट भी कहती है, इसमें लगी हुई है कि दोबारा से रिवाइव किया जाए गुरुकुल्स को, क्योंकि इसके अंदर जो पढ़ाई है, बच्चे एक्चुअली एक बहुत, स्कूल्स भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर स्कूल्स उस तरीके से काम करे जैसे गुरुकुल करता था, वो एक नेचुरल जगह पे रहना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, लेकिन बच्चों को लेके जाते हैं नेचर वॉक्स एंड एवरीथिंग, वो सब कराते हैं। लेकिन अगर उस तरीके से बच्चे पे काम किया जाए तो बहुत ही डिफरेंट होगा, और बच्चे का जो रूप निकलेगा, बच्चे का जो वो पर्सनालिटी निकलेगी, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो हम उसमें काम कर रहे हैं। एंड वी हैव 40 स्टूडेंट्स। एंड संदीप ने उज्जैन से हमने इसको एफिलिएशन करा रहा, Hmm. एफिलिएशन हो चुका है इसका। एंड इन बच्चों को भी मौका मिला है। It's very important to break the myth of Gurukul schools कि सिर्फ पंडित निकलते हैं या इनमें जाते हैं। हम्म, They go in various streams, but उनको इतनी opportunity नहीं मिलती because वो myth हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा बढ़ गया है। But मिथ नहीं बढ़ गया, उनको उसके अकॉर्डिंगली एजुकेशन नहीं मिलती, yeah. जस्ट बिकॉज हम उन्हीं वेदों की पढ़ाई भी उन्हें लगाए रखते हैं, Hmm. बट उनको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, इनकी भी पढ़ाई हमें इक्विवेलेंट करानी पड़ती है, Yes. उनका भी एग्जाम दिलवाना पड़ता है। Hmm. तब वो जो एक मिक्स जो अच्छा बन के आता है, जब वो जो फ्यूजन में उसको पढ़ते हैं, वो जैसे डेली के उनके शेड्यूल में उनका एक वेद पढ़ना है, और डेली इन सब कोर्स सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, तब वो 12th के बाद उनके हाथ में एक अच्छी चीज होती है। एंड वो एक एक कहते हैं ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली Hmm. बात करते हैं, तो एक उस तरीके से वो बात कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग फ्री एजुकेशन देयर। Wow. एंड यस, एंड ये हम काम कर So रहे हैं। basically आप society work नहीं, आप God's work कर रहे हो। नहीं, द ग्रेस ऑफ गॉड, और भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी विजडम दे कि हम ये सब कर सकें। एंड आई थिंक डायरेक्शन तो भगवान ही दिखा रहा है, हम करने Yeah. वाले कौन है। एंड भगवान चाहता है कि हम ये करें, और इसलिए हम कर रहे हैं। But what was that one moment where you felt कि you want to step in the education field? Because बहुत सारे international schools हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे public schools भी हैं. So what made you stand out among all of them? See, God City is a township, it's an integrated township. Hmm. So school is mandatory for that. We have to build it. Hmm. At that time, 2014, we Hmm. have to build it. चाहे हम चलाते या हम फ्रेंचाइजी लेते, Hmm. तो हमें करना ही था। Okay. सो हमने ट्राई किया कि व्हाई नॉट, हम ट्राई करते हैं। Hmm. Hmm. सो दैट्स व्हाई हम इस एजुकेशन फील्ड में आए हम लोग। But that those are the two most dynamic sectors of our country, education and real estate. And we feel कि आप दोनों में इतनी powerful हो, you have made such a position for yourself कि कभी भी दिमाग में आता है कि घर लेना है तो गॉड सिटी लेते हैं, गॉड जाते हैं, और स्कूल इट्स गॉड इंटरनेशनल। सो दैट इज द वर्क वी ऑल एडमायर। सो कभी एजुकेशन फील्ड से बहुत सेटबैक भी होते हैं कि बच्चों का कुछ सेटबैक हो गया, या आपको कभी यू वर एमिंग कि हमें इनसे एफिलिएशन मिल जाए, इससे हो जाए। सो व्हाट वाज दैट वन मेजर सेटबैक दैट यू फेस्ड इन योर लाइफ एंड यू ओवरकेम? नो, आई डोंट थिंक सो एनी सेटबैक। हम्म। हाँ, थोड़ा सा ईज ऑफ वर्क जरूर करना चाहिए। लाइक गवर्नमेंट अभी जो आप तो का सब कुछ बहुत ज्यादा ऑनलाइन होने लगा है। पहले ये चीजें हुआ करती थी, कितना टाइम लग रहा है, सीबीएसई से एफिलिएशन में टाइम लग रहा है, या बहुत सारी और चीजें हुआ करती है, अथॉरिटी से है, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, डीआईओएस है, बहुत सारी चीजें हुआ करती, बट सब हेल्पफुल हैं। लेकिन अब तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया, डिजिटलाइज हो गया है, तो आपको वो सब प्रॉब्लम नहीं आती। तो
ऐसा सेटबैक तो मैं नहीं कहूंगी कभी कुछ ऐसा हुआ है, टचवुड। टचवुड। सो ऐसा सब कुछ ठीक रहा, हम्म, लेकिन हम करते रहे। हम्म, ऐसा कुछ लाइफ में हुआ नहीं। हाँ, हम्म, जब मेरी हेल्थ इश्यूज हुए तब बहुत कुछ हुआ कि लाइक इन 2023 आई गॉट कैंसर हम्म, एंड तब मुझे लगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं क्या करूं, बिकॉज आई हैव दैट टाइम आई हैव 3 स्कूल्स एंड सिद्धार्थ विहार के स्कूल को मुझे स्टार्ट करना था, स्टैब्लिश करना था एट दैट टाइम एंड माय हस्बैंड मिस्टर मनोज सेड कि मंजू नाउ यू हैव टू अपॉइंट ए सीईओ, आप सीईओ रखिए, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक नया स्कूल भी सेटअप करना है, कैसे होगा, ऑलरेडी 2 स्कूल चल रहे हैं। सो आई सेड कि नहीं नहीं, वेट, आई डू, वेट, अगर मैं नहीं कर पाऊंगी देन यू कैन अपॉइंट, अदरवाइज आई वांट टू डू, मुझे करना है। वाओ। एंड सो when I came to know about my disease, हम्म, my cancer, so I spoke to my doctors कि डॉक्टर्स आप मुझे बताइए कि ये मुझे जीना कैसे है, मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आता, यू टोटली लॉस्ट, आप सोचते हैं क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन इन योर लाइफ एंड ऐसे कैसे हो सकता है, या, आप अच्छे खासे हो, मेरी फ्लाइट है और मैं जा रही हूँ, सडनली आई गॉट कैंसर, मुझे पता चलता है कि मुझे ये सब हो गया, तो इट्स रियली फिल्मी, लाइक ये क्या हुआ मुझे ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि मंजू यू आर वर्किंग, मैंने कैसे, यस आई एम वर्किंग। तो मैं आज भी वो दिन आई कैन रिमेम्बर, मुझे थोड़ा सा पता चल गया था कि समथिंग इज गोइंग हम्म, रॉन्ग इन माय लाइफ एंड सो मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर में अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सो मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था स्कूल का। सो ग्रेटर नोएडा गई एंड डीआईओ से मिली, बिकॉज मुझे वो पेपर्स चाहिए थे बहुत जरूरी। सो मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगी तो व्हाट विल हैपन, मुझे कितना टाइम लगना है, क्या लगना है, ऐसे करके। सो मैं मॉर्निंग में I went to DIO's office and then I went to I think 4 o'clock. I went to Saket Max हम्म, and doctors ने कहा कि हाँ, तब मैंने जब the finally doctor said कि now it's confirmed हम्म, and you got cancer and you have to take care and we have to start your treatment. So no choice, you have to do that. So मैंने कहा, मेरे सबसे आई एम क्राइंग लिटरली, लाइक कुछ हो ही नहीं सकता था ना यू। तो पर मैंने कहा डॉक्टर आप मुझे ये बताइए कि मुझे जीना कैसे है, मुझे ये समझाओ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होने वाला है। सो उन्होंने कहा कि मंजू आर यू वर्किंग, मैंने कहा यस आई एम वर्किंग। तो कह रहा काम करते रहना बस, काम करती रहोगी तो तुम्हारी जो है ना वो जो हिम्मत है वो बनी रहेगी, क्योंकि तुम उससे काम से भूलोगी, हम्म, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि घर में रहोगी तो पेन्स तो बहुत होने ही है, उसके लिए रेडी रहो। बहुत सारी वीकनेस भी आनी है, वो भी एक अलग लेवल की होगी जो तुम कभी इमेजिन भी नहीं की होगी ऐसी वीकनेस, तो वो सब भी होगा। लेकिन अगर काम करती रहोगी तो तुम्हें बहुत एक अच्छा, आई थिंक वो तुम्हारा बेस्ट साथी होगा। आई एम रियली मतलब मैं यही कहती हूँ कि वो मेरा सबसे बेस्ट हम्म, साथी रहा एंड मेरा बेस्ट कंपेनियन रहा उस टाइम पे। मैं कीमो के लिए जाती थी एंड फिर मैं वापस आती थी, 2-3 डेज रेस्ट करती थी, फिर मैं दोबारा यहाँ आती थी। बट माई होल टीम, माई स्टाफ, वो स्टाफ एट होम, at staff in my school, they are so helpful। जब मैं चलती थी बिकॉज आई गॉट सो वीक, तो मेरे साथ साथ चलते थे, मैडम गिरना पड़ेगी और हो जाए ऐसे करके, तो मतलब इट्स अब तो मुझे स्टोरी की तरह लगता है कि मैं अब आई एम फुली रिकवर्ड। सो एक वो सेटबैक जरूर था एंड बट मैं उससे निकल के आई, बट मेरा काम ही मेरा जो था मेरी स्ट्रेंथ बना, कि मैं काम करती थी, मैं भूल जाती थी इतनी कि मैं बैठती थी जब सीट पे, मुझे 3-4 घंटे काम करना होता था, मैं उतना नहीं करती थी जितना काम मैं अब करती हूँ या पहले किया करती थी। तो लाइक बैठती थी फिर क्योंकि काम करना है, सो आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग कि यार मुझे बीमारी हुई थी या कुछ ऐसा हो रहा था, तो मैं करके फिर आई देन गो बैक टू होम एंड मुझे अच्छा लगता था अपने आप को कि आई एम सो करेजियस यार, आई कैन यस, डू, आई हैव genuinely। स्ट्रेंथ, गॉड इज सो काइंड ऑफ टू मी कि लाइक आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ और वो मुझसे करवा रहा है ये करके, और मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है। तो आई एम सच आई थिंक आई एम सच अ ब्रेव लेडी। Yes, you are 100%. So back then, when you entered this field, properly male-dominated field था real estate. So what is that one advice आप अपने experience से देना चाहेंगी to women who want to enter this field now? आई थिंक वुमेन शुड एंटर इन दिस फील्ड टू, मतलब आना ही चाहिए, Hmm. बिकॉज जो घर होता है ना,
मकान होता है वो पहले, तो घर क्या होता है वो एक औरत बनाती Yes. है। एंड उसमें क्या होता है कि समटाइम्स जब मैं स्टार्टिंग में आई तो हम प्लानिंग में कभी कभी मैं भी बैठ जाती थी इस तरीके से, बिकॉज हमने घर को चलाया था, हमने घर Hmm. को देखा था कि वार्डरोब्स कैसी होनी चाहिए, किचन कैसी होनी चाहिए, सिंक कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा रेफ्रिजरेटर रखना Hmm. है, Hmm. हमें कितनी वार्डरोब्स चाहिए, या टॉयलेट्स कैसे होने चाहिए, मतलब उसका Hmm. प्रैक्टिकल यूज क्या Yes. होता है। Yes. तो क्या होता है वो जो प्रैक्टिकल यूज होता है वो एक लेडी जो एक फीमेल है वही बता सकती है। तो कई बार हम ऐसे चेंजेस कराते थे कि नहीं नहीं वी हैव टू डू दिस, ये हमें करना चाहिए बिकॉज इससे ज्यादा अच्छा रहेगा लेडीज के लिए, बहुत कंफर्ट लेवल आएगा। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें, आई थिंक ये जो सेक्टर है, आई नो इट्स वेरी हार्ड सेक्टर, वेरी टफ सेक्टर, बट Hmm. आई थिंक वुमेन्स को इसमें आना चाहिए, बिकॉज जो वो देखती हैं घरों को, वो अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को इसमें यूज कर सकती हैं एंड इसको और बेटर बना सकती हैं। That तो is very true हाँ, because even my mom is not from this sector, but जब हमने कर लिया वो प्रॉपर लैंडस्केपिंग कि यस, यहाँ पे ऐसे आएगा एंड हम बस पीछे देख रहे थे कि आपको कैसे पता है, शी लाइक कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो हम ही है ना, हमारे एट द हमें एंड ऑफ द डे यस, वी हैव टू प्लेस द थिंग्स यस देयर। वेरी ट्रू। तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, डेली एक्सपीरियंस ऐसा है, तो उनके पास जो एक नॉलेज है वो बहुत काम आती है, तो वो आई थिंक दे हैव टू कम। एंड आजकल तो वैसे कुछ भी ऐसा नहीं है, लेडीज चांद पे पहुंच रही हैं, या क्या क्या नहीं कर रही हैं। सुनीता विलियम्स तो 9 मंथ्स के बाद वापस आई हैं, या तो ये कोई अब बड़ी बात नहीं रही, अब तो बहुत लेडीज आ रही हैं रियल सेक्टर में, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड बहुत अच्छा लाइक बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं। हालांकि इसमें हम देखते हैं रियल स्टेट में अगर हम देखें तो ये माना जाता है इस सेक्टर में 250 इंडस्ट्रीज मिलती हैं तब जाके एक घर बनता है, बिकॉज यू हैव फ्लोरिंग, सीमेंट, स्टील, सरिया, हार्डवेयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो लाइक वो जब 240 इंडस्ट्रीज एक साथ मिलती है तब जाके एक फ्लैट तैयार होता है। तो हम एक साथ कितना एम्प्लॉयमेंट देखते हैं देते हैं आप देखिए, कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो इतना एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी का जो वो चलता है, एक्सचेंज चलता है, वो कितना बड़ा चलता है, बिकॉज सब कुछ चाहिए, एक घर में सब कुछ चाहिए। या और अगर वो लाखों की उस गिनती में वो घर है तो आप सोचिए कि कितना कुछ चाहिए। रियल स्टेट सेक्टर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आई थिंक हम तो यही कहेंगे बेस्ट सेक्टर है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ करा और गड़बड़ किया है, उसकी वजह से कुछ अच्छे लोग भी उसके उसके नीचे आ जाते हैं। तो बट आई थिंक जो भारत में, इंडिया में घर पहुंचाने का काम बिल्डर्स ने किया है, रियल स्टेट में बिल्डर्स ने किया है, आई थिंक और किसी ने नहीं किया है। दिस इज द बिगेस्ट सेक्टर। मैं तो यही कहूंगी उनको ईज ऑफ वर्क मिलना चाहिए, उनको लाइक जो कंप्लाइंसेस हैं किस तरीके से और इजी उस सेक्टर को किया जाए, उस पर जरूर काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। रियल एस्टेट बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट भी है, while at the same time you all face a lot of hardships also. हार्डशिप्स, अगर आप इंडिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप देखेंगे फ्लैट्स हैं या मॉल्स हैं या होटल्स हैं, तो लाइक गवर्नमेंट ठीक है सब कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ करना सबको पड़ेगा, Yeah. लेकिन रियल स्टेट इसमें बहुत काम कर रहा है। तो उनको ईज ऑफ वर्क भी मिलना चाहिए, जो कंप्लाइंसेस के लिए वो सारी चीजें भी मिलनी चाहिए ताकि उस काम को ऑन टाइम वो कर सकें। इसलिए कई बार हम यही नहीं सोचना चाहिए कि बिल्डर इस बात को लेट कर रहा है, ऐसा नहीं Yeah. होता। जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लाइंसेस ऑल्सो उस चीजें पूरे नहीं हो पाती ऑन टाइम और प्रोजेक्ट भी डिले हो जाते हैं, ये भी होता है। सो हम तो यही कहेंगे कि इसको थोड़ा सा आसान करना चाहिए। जो दैट इज द बैक स्टोरी, हम सब बैक क्लाइंट्स को स्टोरी, यस, पता होना हाँ चाहिए। पता होना चाहिए क्लाइंट्स को कि बिल्डर ही हमेशा गलत नहीं है। ठीक है उनकी भी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम उसको और ईज करेंगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करेंगे या तो हम शायद एक अच्छे उस पर बिकॉज पहुंच बहुत पाएंगे। इजली हम लोग बिल्डर्स को ब्लेम कर देते हम्म, हैं कि आप लोगों ने लेट कर दिया, हम्म, बट वी बीइंग द क्लाइंट वी डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोगों को भी कितने आगे लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हाँ बिकॉज गेटिंग अ it's होम not इज ऑल्सो easy, या रेरा है, अथॉरिटीज हैं, so like there's so टाउन प्लानर्स हैं, तो there's so many, मतलब it's a long team, long list, so उन सब से जूझना है, उसके बाद मैप्स है उसको पास कराना है, so it's not easy। तो वो सारी चीजें भी हैं, ऑल्दो कि लाइक वो सारी चीजों का कैलकुलेशन करके ही आजकल बताया जाता है या कि इतना टाइम हमें इस प्रोजेक्ट में लगेगा, बट फिर भी अगर उसको और इजी किया जाए तो आई थिंक इट्स बेटर वे कि हम उसको और अच्छे से कर पाए। या सो आपने इतना सारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम्स में करा है, सो was there one story जो आपके साथ हमेशा रही है एंड यू ऑलवेज थिंक अबाउट इट?
जैसे व्हेन वी स्टार्टेड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सो जब उसको स्टार्ट किया हम्म गया इन 2018, सो स्टेज था यहाँ पे, एंड स्टेज पे मैं जब आई तो ये पूरा ग्राउंड इट वाज फुल, एंड जो पेरेंट्स था ना, वो मुझे ऐसे देख रहा था, और कुछ की आंखों में बहुत आंसू थे, हम्म कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम्म ये क्या एक मिरेकल हो गया उनकी लाइफ में, और उनके बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन मिल गया। बट दैट टाइम आई रियलाइज कि मंजू, मैंने ये सोचा था कि मैं एक काम करूंगी सोसाइटी के लिए, पर ये तो बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट इजी, ये हम्म तो बहुत बड़ा काम है, ये इतना आसान नहीं है करना। उस टाइम में थोड़ा सा घबराई कि ये सब लोग मुझे इतनी आशा के साथ देख रहे हैं, आंखों में इनके आंसू हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और पता नहीं मैं खरी उतर पाऊंगी या नहीं उतर हम्म पाऊंगी, मैं सही कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं था, बिकॉज स्टार्टिंग में तो ये बहुत होता था इन बच्चों के साथ, बिकॉज इनका जो फाउंडेशन थी वो बहुत वीक थी। सो हम यहाँ पे सेकंड में एडमिशन लेते हैं, कुछ मतलब नॉर्म्स ऐसे हैं तो उससे पहले नहीं ले सकते, सेकंड में लेते हैं एडमिशन, ओके सेकंड टू लेके टिल हम्म 12th दे आर हम्म गेटिंग एजुकेशन। सो जब हम इन्हें लेते थे सेकंड में, सो व्हाट हैपेंड कि लाइक इन बच्चों को ABCD भी नहीं आता था। हम्म अब सेकंड के बच्चे को पे तो हमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं नॉर्मल स्कूल में, या सेंटेंस फॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर्स, 3 लेटर वर्ड्स एंड सो हम्म मेनी थिंग, एंड यहाँ पे बच्चों को नहीं आ रहा है अभी हम्म ABCD भी, हम्म नंबर्स नहीं आ रहे हैं, गिनती नहीं आ रही है, काउंटिंग नहीं आ रही, तो व्हाट टू डू, दैट वाज अ चैलेंज, हम्म कि लाइक उसको कैसे किया जाए, ये कैसे होगा। एंड द टीचर, बिकॉज टीचर जो थी वो ऑलरेडी सब PRT TGT थी, वो एक फुली क्वालिफाइड हम्म टीचर्स। अगर हम एक, जब हमें 2 बच्चे पढ़ाने के लिए मिले जो इंटेलिजेंट हो, और एक बच्चा जो कि बिल्कुल एवरेज भी नहीं है, बिलो द एवरेज है, हम्म सो आपके एफर्ट्स कितने लगेंगे? डबल डबल, डबल से भी ट्रिपल एफर्ट्स। या तो समटाइम्स टीचर्स आल्सो गिव अप, वो कह देते कि नहीं मैडम वी कांट डू, ये नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर फुली क्वालिफाइड, एंड हम नॉर्मल स्कूल में मॉर्निंग में पढ़ाएंगे, हम क्यों पढ़ाएंगे, या क्योंकि हमें इतना एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं है। कुछ बच्चे 3-4 महीने पढ़ के वापस चले जाते थे, आते ही नहीं थे, तो कितनी चीजें मुझे उसमें चेंज करनी पड़ी अपनी पॉलिसीज में, कि ऐसा नहीं हो सकता, इस हम्म तरीके से पढ़ना हम्म पड़ेगा। जो बच्चा फेल हो गया तो उसको ये मैंडेटरी है, जो बच्चा फेल हो जाता है यहाँ पे उसको हम्म 2 साल पढ़ना पड़ता है उस क्लास में, ओके अदरवाइज उसे कोप अप ही नहीं कर सकते, हम्म पॉसिबल ही नहीं है, हम्म बिकॉज फाउंडेशन इतनी वीक है। सो तब जब ये मेरे लिए बहुत, एक जब टीचर्स को ये समझाना कि हम, देखो हम भी एक बैक टू द सोसाइटी कुछ कर रहे हैं, सो आपको एक चांस मिला है, यू आर सो या फॉर्चुनेट, इफ यू कैन डू प्लीज डू। एंड धीरे धीरे बहुत सारी टीचर्स जो मेरे साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं, हम्म अभी भी हैं, हम्म एंड वो अभी भी काम कर रही हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, बड़ी सेटिस्फेक्शन उन्हें भी मिलती है एंड ऑफ द डे, हम्म कि हाँ हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को हम पढ़ा रहे हम्म हैं, एंड सोसाइटी में ये बच्चे जो हैं जिनको कोई जानता नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, हम उनको एक पहचान दे रहे हैं। तो ऐसे ही मैं कभी कभी इनकी क्लासेस में जाती हूँ, विजिट करती हूँ, तो एक दिन मैं विजिट कर रही थी तो सेकंड क्लास थी, एंड मैंने इस बच्चे से पूछा कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर फ्यूचर। सो एक गर्ल खड़ी, सब बच्चों ने कहा वी वांट टू बी आईएएस ऑफिसर, एवरीबॉडी वांट्स टू बी आईएएस ऑफिसर। हम्म तो मैंने कहा कि आपको आईएएस ऑफिसर का मतलब पता है? यस वी नो, यस वी नो। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। सो एक लड़की मैं जाने लगी, हम्म एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके सपने इतने बड़े हैं, और अगर गॉड इंटरनेशनल स्कूल इन सपनों को साकार कर पाया, बहुत बड़ी बात होगी। या एंड उसके बाद जब वो मैं जाने लगी तो एक बच्ची ने मुझे रोक लिया, एंड शी सेड कि मैडम आज आपने हमारी मदद की है ना, तो जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी ना, तब मैं आपकी मदद करूंगी। तो Oh दैट इज रियली God. टच टू मी, ओ माय गॉड, इसकी सोच तो देखो, जरा सा बच्चा इसकी सोच देखो, वो उस चीज को समझ रहा है, उसकी वैल्यू कर रहा है जो उसे मिला है, कि मेरे को बहुत बड़ी चीज मिल गई है और Yeah. मैं कुछ भी बन सकती हूँ नाउ। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे, और ये मैं जानती हूँ कि बेटी बचाओ के बड़े बच्चे इस बात को बहुत वैल्यू करते हैं कि उन्हें क्या मिल गया है जो उन्हें नहीं मिल सकता था। Yeah. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड इसके साथ ही अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो अभी हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्किल सेंटर भी हम खोलने जा रहे हैं, एंड इसमें गॉड स्किल सेंटर खोल रहे हैं, एंड ट्रेनिंग सेंटर्स रहेंगे उसके अंदर। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं Hmm. दे आर गेटिंग फ्री ट्रेनिंग्स,
सो हमारे पास अभी 2 योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, समर्थ और हयासा। एक तो हम इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं एंड ई कॉमर्स इस पे काम कर रहे हैं। एंड चार्जिंग स्टेशंस पे जो उनके लोग काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग्स यहाँ पे चलेंगी। एंड उसके लिए यहाँ पे सामने पूरा ये सेंटर खोलने जा रहे हैं। आई थिंक इस मंथ या नेक्स्ट मंथ इसकी ओपनिंग हो जाएगी और ये हमारा गवर्नमेंट के साथ टाई अप हुआ है। तो ये बच्चियां जब यहाँ से निकलें, अगर उनके पास फिर भी आगे जाने के लिए कुछ नहीं है तो दे कैन डू दिस। So you're still there to help them. यस, स्टिल देयर टू हेल्प देम कि वो यहाँ पे कोर्स करके जाएं, शॉर्ट कोर्सेज करें। बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज आने वाले हैं तो उसको वो ज्वाइन कर सकती हैं और गवर्नमेंट से एफिलिएशन के साथ वो कोर्सेज उनके हाथ में एक डिग्री होगी तो ये भी उनके लिए लाइफ में एक हेल्प करेगा। It is so grateful and good to see you giving back so much to the society कि इतना आप लोग सोसाइटी के बारे में हेल्प कर रहे हो, बच्चों की हेल्प कर रहे हो, बिकॉज नो मैटर व्हाट कहीं भी विलेज में कुछ कुछ बच्चे बच जाते हैं कि उनको एजुकेशन नहीं मिलती एंड देन यू आर टारगेटिंग दोज चिल्ड्रन स्पेशली द गर्ल्स की आगे बढ़े, हेल्प करे। एंड जो अभी आपने स्टोरी बताई कि एक सेकंड ग्रेड की बच्ची इतना हाईली सोच भी सकती है कि शी वांट्स टू गिव इट बैक टू यू, इट मेड अस इमोशनल कि कितनी कितनी अच्छी स्टोरी है। थैंक यू सो मच। So ending with the segment, we just want to know that the work you have done. So what do you hope that your work leaves behind a legacy? मुझे लगता है जो मैंने काम किया एंड ये मेरा पैशन भी रहा, ये मैंने बहुत फोकस्ड होके बहुत डेडिकेशन के साथ किया। एंड मैं जब भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है माय सन, माय हस्बैंड जब भी कहीं उनका भी कोई पॉडकास्ट होता है या बहुत कोई इंटरव्यू होता है तो वो भी इस काम को जरूर बताते हैं कि हम ये सब काम कर रहे हैं। और ये गॉड इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें बेटी बचाओ या गुरुकुलम है या स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बारे में वो भी बात करते हैं एंड दे गेटिंग लॉट ऑफ प्रेज आल्सो फॉर दैट कि अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं आप इसके लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, इवन इंडिया लेवल पे मिलता है इस बात को प्रेज, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मैं ये काम कर रही हूँ। मैं यही चाहूंगी कि ये जो काम है मैं और आगे बढ़ा सकूं और लोगों तक पहुंच सकूं एंड जितने भी लोग हैं जो और डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, ये काम मेरा वहां तक जाए एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख कर पाए। मेरी यही और जब मेरे बाद मेरे बच्चे इस काम को और आगे बढ़ाएं, मैं जरूर चाहूंगी ऐसा ना हो कि ये काम यहीं पे खत्म हो जाए, क्योंकि हम एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि ये जो मेरी बच्चे हैं या मेरी डॉटर इन लॉज हैं वो इसमें जरूर आए और इस इन्वॉल्व हो, इस काम को आगे लेके जाए। Thank you so much, ma'am. So this was it for today's episode. We had Miss Manju Gaur ma'am with us. We are grateful to have you today with us, ma'am. Thank you so much. Thank you. If you liked the episode, do like, share, and subscribe. Thank you. Thank you. Welcome guys, today we are at Gaur International School. We are shooting with the director of Gaur International, also the director of Gaur Sons, Miss Manju. Manju. मेरा वो ना वो चल रहा है, वो जो पेंटिंग नहीं बनाता वो घोड़े वाली मजनू, वो लेट्स सॉरी। Today we are shooting with Manju Gaur ma'am and that's her office and when we stepped in her office we loved it. मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई उसमें आ गई हूँ क्या, मैंशन में आ गई है, रूम हूँ मैं क्या, बट लवली ऑफिस। लोग कहते हैं सबके पास आवाज़ है, बंद करो।